The Lord Jesus Christ is holy, He's healthy, He's almighty, He's a King of authority, He's full of power, He's all-seeing God, He's all pure God, He's all compassionate God, He's a gentle God, He's a harmless God. He's all loving, He's all approachable, He's all giving, He's all protecting, He's all firmness, and He's all joyful, He's satisfied. His words are sweet, respectful, comforting words comes out of Him. Let us call the Lord in prayer. इस समय हम प्रार्थना में प्रभु को याद करें। इस समय Dear Heavenly Father, I thank you for this time. स्वर्गीय पिता, मैं इस समय आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। Thank you for bringing us here safely. और हमें सुरक्षित रूप से यहाँ पर ले आने के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for protecting us this week, O Lord. और इस हफ्ते में आपने हमें सुरक्षा दिया है पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, as we get in the preaching of Thy word, जैसे हम आपकी वचनों में इस समय प्रवेश करने वाले हैं, I ask you to give me a heart that will preach Thy word, O Lord. और पिता परमेश्वर ऐसा हृदय को दे ताकि जो आपकी वचनों का प्रचार कर सके, And the hearers may have a acceptable heart, O Lord. और जो सुनने वाले लोग कहते हैं कि उन लोग आपकी वचनों का ग्रहण करने वाला बने। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Today I like to talk to you about Christian versus the disciple. और आज मसीहत और जो चेले हैं उसके बीच के अंतर को मैं बताना चाहूँगा। And the cost of being a disciple. और मसीह एक चेले बनने का जो कीमत है उसको इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। Now to be a Christian it is free. एक मसीह बनना जो है एक मुफ्त की बात है। And to be a disciple of the Lord Jesus Christ it takes a cost. लेकिन यीशु मसीह के चेले बनने के लिए आपको बहुत सी कीमत चुकाने पड़ सकते हैं। A Christian is a person who knows Christ. और एक मसीह ऐसे लोग हैं जो मसीह को जानते हैं। He is a saved person. और वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। He has accepted the Lord Jesus Christ as his personal savior. और उनकी उद्धारकर्ता के रूप से जो है उस व्यक्ति ने यीशु को स्वीकारा है। To be a Christian it is just a starting point of a faith journey. और एक मसीह बनने के लिए जो है एक मसीह का जो एक जीवन की दौड़ है वो शुरू हो जाती है। A disciple is a learner. लेकिन एक चेले जो है वो शिक्षाओं को लगातार वो पाते हैं। He is taught by his master. और वो अपने प्रभु के द्वारा सिखाया जाता है। And then he becomes like his master. और वो अपने प्रभु के समान बन जाते हैं। You can be a disciple of anybody. आप किसी के भी चेले भी बन सकते हैं। You can be a disciple of Muhammad. आप मोहम्मद के चेले बन सकते हैं। You can be a disciple of Sadhguru. और आप सदगुरु के चेले बन सकते हैं। Or you can name whatever name you want. और जो भी आप नाम लेना चाहते हैं, नामकरण देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। But to be a disciple of Jesus Christ, you have to follow him. और आपको यीशु मसीह के चेले बनने के लिए उनका अनुसरण करना पड़ेगा। The Bible says, Jesus said, "Come unto me." यीशु ने कहा कि तुम मेरे और आओ। That is, you have to get saved. और वो जो है आपको उद्धार पाना है। And then he says, "Come after me." और वो कहता है उसके बाद कि आप तुम मेरे पीछे आओ। That means you have to be a disciple. इसका मतलब तुम्हें जो है यीशु के चेले बनने हैं। Now you may say, "I want to be a disciple of Jesus Christ." आप कैसे दें, हाँ मैं यीशु का चेला बनना चाहता हूँ। But wait a minute. लेकिन कुछ समय के लिए आप रुकें। It takes a cost to be a disciple of Jesus Christ. यीशु मसीह के चेले बनने के लिए आपको बहुत से कीमत चुकाने पड़ सकते हैं। Are you willing to take that cost? क्या आप उस कीमत को लेने के लिए इच्छुक हैं? Now, whenever you have bought a cheap thing, जब कभी भी आपने कुछ चीजों को यहाँ पर ले आए हैं and you use it just for one day, और आप उन सारी चीजों को एक दिन के लिए इस्तेमाल करते you हैं, won't remember the cheap price. और वो जो सस्ती जो प्राइस थे उसको आप याद नहीं करोगे। You will just remember that it was just of no use. और आप उसको ऐसे करके याद करेंगे हाँ वो कोई काम का नहीं था। But if you buy a costly item लेकिन अगर आप महंगे चीजों को खरीदते हैं and it lasts for years and years, और वो सालों के लिए वो लास्ट होते हैं, you will feel that okay, it was worth
to buy it. और आपको आप लगने लगा कि हाँ ये जो खरीदना मेरे लिए अच्छा था। So it will take a lot of cost for some people, और ये बहुत से लोगों के लिए जो है बहुत से कीमत लग सकते हैं, but it will be for some people a bit of cost. लेकिन वे बहुत से लोगों के लिए जो है बस कुछ ही चीज़ों के लिए कीमत हो सकते हैं। Now, in the last time when Rajiv preached, और पिछले समय को जब राजी ने प्रचार किया, he spoke about 3 W's. उसने 3 W के ऊपर प्रचार किया था। Today I would like to preach about the 4 W's that cost to be a disciple of Jesus और Christ. आज मैं 4 W के बारे में बात करना चाहूंगा जो एक चेले बनने के लिए हमें कीमत चुकाने पड़ सकते हैं। Turn with me to Luke chapter 14 इस समय हम लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 4 में अपने बाइबल को खोलेंगे and will be in this passage for the whole sermon. और पूरे समन के दौरान हम इसी वचन में हम रहेंगे। Luke chapter 14 will be looking from 14 to chapter 14 26 to 35. लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 25 से लेकर हम 35 तक देखेंगे। And in verse number 26 and 27, 26 और 27 में यूं लिखा है, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण की भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। The first W is you have to be a worshipper at any cost. पहला जो W है, आपको आराधनक बनना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। Now the Bible here says that you have to hate your brother and sister, mother or father. यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें जो है अपने भाई अपने बहनों को अपने माँ पिताओं को जो है नफरत करने होंगे या फिर बैर रखने होंगे। Does not the Bible teach us to love each and every person? क्या बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हमें एक दूसरे से प्रेम भी रखना है? It talks in context to Matthew chapter 6 verse 24. और उस संदर्भ में बात करते हैं जहाँ पे मत्ती में लिखा है उस वचनों को, No man can serve 2 masters, he will hate the one and love the other. और लिखा है कि कोई भी जो है व्यक्ति अपने 2 प्रभु से प्रेम नहीं रख सकता, नहीं तो वो एक तरफ से नहीं जा पाएंगे और दूसरे की ओर नहीं जा पाएंगे। So here it means that you have to put the Lord Jesus Christ first in your life. इसका मतलब यह है कि जो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना होंगे। Anything that comes in first priority, you should hate it. और जो यीशु से आगे पहला स्थान में जो चीजें आ जाती है आपके जीवन में, उसको आपको नफरत करना है। To just see what the Bible says, let's turn our Bibles to Matthew chapter 10 verse 37 to 38. मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 10 में इस समय हम बाइबल को खोल करके यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worth of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। Here the Bible is very clear that we have to put the Lord Jesus Christ first in our life. बाइबल यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना चाहिए। You should give him the first priority above your personal relationship. और आपकी जो अपना व्यक्तिगत जो रिश्ता है उससे भी जो है अधिक आपको प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान, मुख्य स्थान देना है। It may cost you. शायद तुम्हें उसके लिए कीमत चुकाने पड़ सकते हैं। You will lose your friendship with your relatives. और तुम्हारे जो रिश्तेदार है, जो दोस्ती आ रही है, उसको आप खो भी सकते हैं शायद से। But you have to be a worshipper at any cost if you want to be a disciple of अगर आप Jesus यीशु Christ. मसीह का चेला बनना चाहते हैं तो चाहे जो कुछ भी कीमत चुकाने पड़ जाए, आपको उनके अनुसरण करने वाले बनने हैं और उसकी आराधना करने हैं। Then in verse number 27 the Bible says, and whosoever doeth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, वो मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं बन सकता। Okay, coming back to 26, and his own life also. और अपने जीवन को भी
You can't be a person who will be a disciple of Jesus Christ if you don't forsake yourself. अगर आप खुद को जो है अंगीकार या फिर तिरस्कार नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह के चेले नहीं बन सकते। Your personal reputation doesn't matter. आपका जो व्यक्तिगत जो रेपुटेशन है वो कोई मायने नहीं रखता। You may think I have so much popularity. आपको लगने लगा कि हाँ जो मैं जाने माने व्यक्ति हूँ, So what will people think about me if I go trek distribution? अगर मैं ट्रैक्स के लिए जाऊंगा बांटने के लिए लोगों को, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? Your personal reputation doesn't matter. आपका व्यक्तिगत जो रेपुटेशन है वो कोई मायने नहीं रखता। You should forsake yourself and serve the Lord Jesus Christ. आपको खुद को तिरस्कार करके आपको यीशु मसीह की सेवा करना है। And in verse 27 it says to bear the cross. और वचन 27 में लिखा है कि तुम्हें क्रूस को उठाना चाहिए। Now cross is not a thing which is a beauty that you look on, और क्रूस ऐसा चीज नहीं जहां पे खूबसूरती चीजों को आप उसके ऊपर ताकते हैं, but it is a cross of shame. लेकिन वो ऐसा क्रूस है जो शर्म का क्रूस है। It is not the golden cross you wear, और ये ऐसा सोने का जो क्रूस जो आप पहनते हैं वैसा नहीं, but it is a suffering. लेकिन वो एक दुख और कष्ट। So you have to bear that cross. तो आपको उस क्रूस को जो है उठाना है। Now you may think that your sickness is a cross. आपको लगने लगता है शायद आपका जो बीमार है वो आपका क्रूस हो सकता है। Or you may think your father or mother is a cross. आपको लगता है शायद आपके माँ या फिर आपका पिता जो है वो आपका क्रूस है, But they are not your cross. लेकिन वो जो है आपके क्रूस नहीं है। In John chapter 10 verse 18 the Bible says no one has taken it away from me, यूहन्ना 10:18 में लिखा है कोई भी मेरे से नहीं छीना गया है, but I lay it myself. लेकिन मैं खुद को जो है देता हूँ। Here the Lord Jesus Christ is willing to take the cross. यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपनी इच्छा से क्रूस को उठाता है। It was not mandatory to die on the cross, ऐसा नहीं कि वो उसको मरना ही था क्रूस पर, but because of yours and my sin he was willing to take the cross. लेकिन वो आपके और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया। Now we like to quote this verse in Galatians chapter 2 verse 20. इस वचन को हम गलातियन चैप्टर 2 वर्स नंबर 13 में हम जब देखते हैं, I am crucified with Christ. मैं यीशु के साथ क्रूस में लटका दिया गया हूँ। So what does it mean to be a crucified person? उसका मतलब क्या है कि आप भी क्रूस पे लटका जाना? It means you have only one way इसका मतलब आपके पास एक ही रास्ता है and you have no going back, आपके पास और कोई दोबारा पीछे मुड़ के नहीं जाना। and then you have no further plans of your own. उसके बाद आगे जो है आपकी खुद की जो योजनाएं हैं वो और नहीं होंगे। There is only one way, और एक ही रास्ता है, no going back, पीछे जाना नहीं, and no further plans of your own. और आपकी खुद की जो आगे की योजना है उसको आपको नहीं रखना। You have to be a worshipper of Jesus Christ at any cost. चाहे जो कुछ भी हो, आपको यीशु मसीह के आराधना बनना है। You may think it is raining, आपको लगने लगा हाँ ये बहुत से बारिश हो रही है शायद, but you have to worship the Lord Jesus Christ at any cost. लेकिन आपको यीशु मसीह की आराधना चाहे जो कुछ भी हो आपको Or करना you है। may think it is hot, आपको लगता है शायद हाँ बहुत गर्मी है or it is very cold. और बहुत ठंड है, My kids are having extra classes or school activities. और मेरे बच्चों का जो है एक्स्ट्रा स्कूल है, एक्टिविटीज से बहुत सारी चीजें हैं। Or sometimes you may think in the church it is very cold because of the AC. और बहुत से लोगों को लगने लगा चर्च में जो है एसी की वजह से बहुत ठंड है। But you have to be a disciple that worships at any cost. लेकिन आपको ऐसा चेला बनना है जो चाहे जो कुछ भी हो आपको यीशु मसीह की आराधना करना ही करना है। Now we'll see the second W. अभी हम दूसरा डब्ल्यू की ओर गौर करेंगे। You have to be a worker that works at any cost. आपको ऐसा काम करने वाले बनने हैं जो चाहे जो कुछ भी हो वो काम करेगा ही करेगा। Look with me to verse number 28. वचन 28 में आप मेरे साथ देखें। And here the Bible says, for which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply after he hath laid the foundation and is not able to finish it, and all that behold it begin to mock him. तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके
तो सब देखने वाले ये कहकर उससे ठट्ठाना उड़ाने लगे। Verse number 30 saying, this man began to build and was not able to finish. ये मनुष्य बनाने लगा पर तैयार ना कर सका। Here the Bible speaks about unfinished work. बाइबल यहाँ पर एक ऐसी कहानी बताती है जहाँ पे असमाप्त हुई एक जो काम है। Now many of the Christians they are saved and then they work for Jesus Christ. बहुत से ऐसे लोग हैं, मसीह लोग जो उद्धार पाए होते हैं और उन लोग यीशु के लिए काम करना शुरू करते हैं They go out soul winning. और उन लोग आत्मा जीतने के लिए बाहर जाते हैं। They go out for ministry purpose. उन लोग मिनिस्ट्री के सेवकाई के वजह से उन लोग बाहर जाते हैं। And then when something happens in their life, जब कुछ ना कुछ घटते हैं उन लोग के जीवन में, then they leave the church or they become neutral Christians. और उन लोग कलीसिया को छोड़ के जाते हैं और उन लोग एक समान वाले समतल वाले एक मसीह बन जाते हैं। Now here it says to count the cost before starting your work. और आपके काम को शुरुआत करने से पहले जो कीमत चुकाने पड़ सकते हैं उसको आप गिन लें। I like if you will turn to me to Ecclesiastes chapter 7 verse number 8. अगर आप मेरे साथ बाइबल को खोलें, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 वचन 12। Seven verse 8. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in the spirit is better than the proud in the spirit. किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और जीवनवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। When you build a house, जब कुछ घर बनाते हैं it will you will think that it is a lot of cost. आपको लगेगा कि बहुत शायद उसमें खर्च होंगे। You will think that it is very much hard work to do it. आपको लगेगा हाँ बहुत से मेहनत के काम है शायद से, But after you finish it, लेकिन आप उस काम को समाप्त करने के बाद you look at it आप जब उस घर को देखेंगे and you enjoy it. आप उस समय आनंद उठा पाएंगे। That is what the Bible says in Ecclesiastes. और इक्लेसियास्टिस में 100 दशक में बाइबल वही बताती है हमें That the, better is the end of the thing than the beginning. और अंत से उत्तम ज्यादा जो है शुरुआत की से भी जो है अंत उत्तम है। Are you willing to be a disciple of Jesus Christ till the end of your life? क्या आप अपने जीवन के अंत पर तक यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं? You need to count the cost. आपको जो है उस कीमत को गिनना है And you have to be patient. और आपको जो है धीरे रखना है। Next W we see we have to war at any cost. और तीसरा W हम देखेंगे, आपको जो है चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको लड़ना है। We'll look at 31 to 33 for this. और इसके लिए हम 31 और 32 हम वचन को देखेंगे। Or what king going to make a war against another king sitteth not down first and consulteth whether he be able with 10,000 to meet that cometh against him with 20,000, or else while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassador. या कौन ऐसा राजा है जो दूर राजा से दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है, वो पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। And desireth conditions of peace. So likewise whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. नहीं तो उसके दूसरे रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। Now you can't have peace with Satan. और शैतान के संग आपको जो है शांति नहीं मिल सकता। So because of that, उसके कारण you have been given the armor of God. आपको जो है परमेश्वर का हथियार दिया गया है। When you go at home, you can look at Ephesians chapter 13 to 18. जब घर में जाएंगे इफिसिया अध्याय 6 में वचन 13-14 में आप वचन को देख सकते हैं। Now there is a good saying. एक अच्छी कहावत है, In war there is no substitute for victory. और लड़ाई में जो है जीत के लिए कोई अलग जगह नहीं है।
You have to have the victory over Satan every day of your life. आपके जीवन में जो है, हर दिन के जीवन में, दैनंदिन जीवन में आपको शैतान के खिलाफ आपको विजयता प्राप्त करना है, Otherwise, he will destroy your life. नहीं तो वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। Now, I'll just tell you one story. मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। A hunter went to a jungle एक शिकारी जंगल की ओर जाता है and he sees a bear. और वो एक भालू देखता है And he is supposed to press his trigger. और वो अपने ट्रिगर को दबाने ही वाला था। The bear says, wait, wait. भालू कहता है रुक जाओ रुक जाओ, Let us talk about it. आइए हम इसके बारे में कुछ बातचीत करें पहले। So he says, you are there for my fur coat, right? और तुम जो है मेरे चमड़े के लिए यहाँ पर आए हुए शायद से, हाँ, And I am there for a good meal. और मैं यहाँ पर अच्छे भोजन के तलाश में हूँ। So when the discussion was over, जब उन लोगों का बातचीत समाप्त हुआ the bear had a good meal और भालू को अच्छा भोजन मिला and the hunter had a fur coat on him. और जो शिकारी था उनके ऊपर एक चमड़ा रह गया। So there is no, if you compromise with Satan, अगर आप शैतान के साथ समझौता करना शुरू कर देंगे, he will destroy your life. वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। You can't be a disciple who is a compromiser. आप ऐसे चले नहीं बन सकते जो हमेशा समझौता करते हैं। You can't be a disciple if you think about what will happen if I go soul winning. अगर आप ऐसे चले नहीं बन पाएंगे, अगर आप हमेशा ये सोचेंगे अगर मैं सोल विनिंग को जाऊंगा, आत्मा जीतने के लिए जाऊंगा, मेरे साथ क्या हो सकता है। Or you can't be a disciple if you are a coward person. अगर आप ऐसे ढके हुए व्यक्ति हैं तो आप जो है प्रभु यीशु के चेले नहीं बन पाएंगे। You have to war at any cost. आपको युद्ध को लड़ना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। If you are being a neutral, अगर आप ऐसे मसीह हैं जो एक ही जगह में स्थिर रहते हैं, not on this side or this side, इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं, you can't be standing in that war. आप उस लड़ाई में जो है युद्ध में नहीं खड़े हो सकते। You will be destroyed in that war. आप उस युद्ध में नष्ट हो जाएंगे। So next W we'll see is you have to witness at any cost. अगला W हम देखेंगे, आपको जो है चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको साक्षी देना है। Now you may think I am talking about soul winning in every of my sermon, आपको लगने लगा है मेरे हर समय में जो है मैं सोल विनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, but that is what the Bible speaks. और वही बाइबल हमें कहती है। We'll look at 34 and 35. वचन 34 और 35 में हम देखेंगे इस समय। Salt is good, नमक तो अच्छा है, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be seasoned? परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। It is neither fit for the land nor yet for the dunghill, but man casteth it out. Man casteth it out. वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिससे सुनने के कान हो वो सुन लें। The salt is speaking about you witnessing for the Lord Jesus Christ. नमक जो है आपके बारे में ये बता रहे कि जो आप यीशु मसीह के लिए साक्षी बनते हैं। Salt preserves. और नमक जो है वो सुरक्षित देते हैं। Salt heals. और नमक जो है चंगाई को देते हैं। Salt could heal a broken spirit. और नमक जो है टूटे हुए हृदय को वो अच्छा कर सकता है। And that is the gospel of the Lord Jesus और वो Christ. यीशु मसीह का शुभ समाचार है। Now you are told to separate from sinners, आपको जो है पापियों से अलग होने के लिए कहा गया है, but you are not told to stay away from them. लेकिन आपको ऐसा भी नहीं कहा गया कि आप उन लोग से दूर रहें, They crucified Christ because he was the friend of sinners. क्योंकि वो पापियों का दोस्त था, इसलिए लोगों ने उनको क्रूस पे लटका दिया। You have to witness so that people get saved. आपको इसीलिए साक्षी या फिर गवाही देने हैं, जाकर के बताना है यीशु के बारे में कि उन लोग उद्धार को पा सके। Are you willing to be that salt of this earth? क्या आप उस जगत के नमक बनना चाहेंगे? It doesn't say you have to be a salt of this church, of the church. ऐसा नहीं लिखा कि आप इस कलीसिया के नमक बन जाएं, You have to be the salt of the earth. लेकिन आपको इस जगत के नमक बनना है। You may come to church every Sunday, शायद हर रविवार को चर्च को आ सकते हैं, but salt can't salt. लेकिन नमक जो है उसका नमकीन को
सॉरी नमक नमक को नमकीन नहीं कर सकते. नमक नमक को नमकीन नहीं कर सकता है. There is a reward for following our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का पीछा अगर आप पीछे चलते हैं तो उनके लिए आपको पुरस्कार भी है. Let's turn to Mark chapter 10 आइए हम इस समय मरकुस अध्याय 10 में खोलेंगे and we'll be looking at verse 29 and 30. वचन 29 और 30 को हम देखेंगे इस समय. Mark chapter 10 verse 29 and 30. मरकुस 10 वचन 29 और 30. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive an hundredfold now in this time. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिससे मेरे पास सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चे या खेतों या छोड़ दिया है, वो अब इस समय 100 गुना ना पाए. घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन. You may think there is a lot of cost to follow the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के पीछे चलना शायद आपके लिए बहुत महंगे पड़ सकते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है शायद से. but there is also a reward for following him. लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए भी जो है आपको पुरस्कार मिल सकते हैं. Are you willing to be a disciple of the Lord Jesus Christ, क्या आप यीशु मसीह के चेला बनने के लिए तैयार हैं, or are you just satisfied of being a Christian? या फिर आप केवल एक मसीह बनकर ही आप संतुष्ट हो गए हैं? Are you just willing to enjoy your Christian life, or are you willing to pay the price which cost you? क्या आप मसीह जीवन को आनंद उठाना चाहते हैं या फिर जो ऐसा मसीह जिसके लिए आपको कीमत चुकाने पड़ सकते हैं? It is very easy to be a Christian, मसीह बनना बहुत ही आसान है, but it is very difficult to be a disciple of Jesus लेकिन Christ. यीशु का चेला बनना बहुत ही कठिन बात है. Now you may say, how do you be a Christian? तो आप कैसे थे, आप मसीह कैसे बनते हैं? You have to believe that you are a sinner first. आपको ये जानना उचित है कि आप एक पापी व्यक्ति हैं. You have to believe that nothing can save you than the Lord Jesus Christ. आपको ये जानने की उचित है कि कोई भी आपको बचा नहीं सकता, उद्धार नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह आपको बचा सकता है. And then you need to believe that He has died. He came to this world and died for your sins. और आपको विश्वास करना कि वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया और आपके पाप के लिए वो मरा. And then He rose on the third day. और वो तीसरा दिन जी उठा. And if you believe in Him, अगर आप उनको विश्वास करते हैं, then you will get saved. तो आप उद्धार जरूर से पाएंगे. There is a person said, एक व्यक्ति ने कहा, in order to be a happy man, एक खुशहाल व्यक्ति बनने के लिए you have to have three things. आपको 3 चीजों की जरूरत है. Something to believe in, और कुछ विश्वास करने के लिए, someone to love, किसी को प्यार करने के लिए, and a cause to serve. या फिर सेवा के लिए जो कीमत है. And that is the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह हैं. Are you willing to be a disciple of Jesus क्या आप Christ? यीशु मसीह के चेले बनने के लिए तैयार हैं? Let us call the Lord in prayer. आइए इस समय हम प्रार्थना करें. Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for this time, O Lord. मैं इस समय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा. Thank you for giving me this opportunity to preach before your children, O Lord. और इस समय आपने मुझे दिया था कि मैं आपके बच्चों के समूह आकर प्रचार कर सकूं. Lord, I pray for this sermon, O Lord, that people have accepted in their hearts, O Lord. और प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए जो लोगों ने आपके वचनों को स्वीकारा है. And as I have preached to thy children, it is also applicable for me, O Lord. और जैसे मैंने आपके बच्चों को प्रचार किया, लेकिन ये मेरे जीवन के लिए भी उपलब्ध है पिता परमेश्वर. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. आमीन. आमीन.